A very good morning to you all. Welcome back to our second session from Population Interactions. In our last class, we studied about few population interactions. We discussed what are population interactions, why are they so important, what is their role in population, how they play role in the organismic behaviors, and what effects do they cause in different kind of species and among the population. In continuation of that, we studied about some population interactions in our last class, such as we studied about competition, we knew what predation is, then we got to know about parasitism, in which we also discussed a question whether a female mosquito that feeds on human blood is a parasite or not. If not, then why not? If yes, then why? And we came to the conclusion that the female mosquito is not a parasite. Reason being, firstly, it is a carrier of disease. Being vector or carrier, it is not a parasite. And secondly, it is not dependent on human being for its survival, but for reproduction. So it is not getting nutrients from the host. That is why it is not a parasite. Moving ahead to those things, we discussed what is the definition of population interaction, how does it play an important role, why does population interaction happens, what are the type of interactions. We learned the sign languages of these interactions depending on what type of behavior do they cause. Then we studied about predation, and how to avoid predation, what organisms do have in their bodies, what mechanisms do they are evolved with to avoid predation. Then we studied competition, in which we studied an example, a very popular example of Paramecium aurelia and Paramecium caudatum, in about which I will talk in detail in next session also, where we will study about resource partitioning, competitive exclusion principle, and few more important terms and topics. Then we studied about parasitism. We learned what special adaptations parasites have, such as the loss of unnecessary sense organs, adhesive organs are present, loss of digestive system, and etc. etc. Then we studied about type of parasites. Few among those are parasite inside our own body. Some people among us faces problem due to attack of tapeworm and liver flukes, and we have another parasites like lice on hairs and ticks on dogs, etc. etc. And then we discussed a fascinating example of brood parasitism and the female mosquitoes question. Now, moving ahead in this topic, today we will discuss about rest terms of population interaction, rest of the interactions that are present, in which first we will talk about commensalism. Talking about commensalism, we already studied via sign language that for this plus plus is present. It means for species A it is plus and for species B it is plus. Mean to say, commensalism is a type of interaction in which one species benefits and other species is neither harmed nor benefited. So actually it is not plus plus, it's plus zero, because one is getting benefit, so positive effect for one, but another one is neither harmed nor benefited, so it is zero for the other one. कहने का मतलब ये है कि हम लोग, मैं और आप, अगर किसी ऐसी एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो जाएं जहां मुझे आपसे कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन आप मुझे बेनिफिट तो प्रोवाइड कर दें, लेकिन उससे ना ही तो आपका कोई हार्म हो और ना ही आपको कोई बेनिफिट मिले, तो आप नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में जाएंगे और मैं प्रॉफिट में जाऊंगी। तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, मेरे लिए साइन पॉजिटिव हो जाएगा, आपको ना बेनिफिट मिलेगा लेकिन ना ही कोई नुकसान होगा, तो आपके लिए साइन जीरो रह जाएगा।
दिस इज अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ड्यूरिंग कमेंसलिज्म, और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ टाइप वेयर वी हैव न्यूट्रल काइंड ऑफ इंट्रैक्शन, न्यूट्रल बिहेवियर इज शोन, बिकॉज ना ही तो एक को बेनिफिट हो रहा है ना ही उसको हार्म हो रहा है, लेकिन दूसरे के लिए वो बेनिफिशियल हो रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव इंट्रैक्शन फॉर वन स्पीसीज बट न्यूट्रल फॉर अनदर स्पीसीज. Taking example of this, we have an orchid growing as an epiphyte on a mango branch, and baroncles growing on the back of a whale benefit, while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit. कहने का मतलब ये है कि आपने मैंगो के ब्रांच पे, जो आम का पेड़ होता है उसके ब्रांच पे, इफ यू हैव सीन, तो एपीफाइट्स ग्रो करते हैं. एक एपीफाइट है ऑर्किड. ऑर्किड बेसिकली एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, बट उनकी इंट्रैक्शन पैरासिटिक नहीं होती. डू यू गेट इट? कस्कुटा जो है अमर बेल, उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था यहाँ पे पैरासिटिज्म में, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो कस्कुटा या अमर बेल है, जहां हम ये बात कर रहे थे एक्टोपैरासाइट की, कि कस्कुटा ग्रोइंग ऑन अ हेज प्लांट, ये एक पैरासाइट है. यहाँ पे भी एक प्लांट दूसरे प्लांट पे ग्रो कर रहा है, लेकिन वो कंप्लीटली उसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स के लिए प्रेजेंट है, उसको अपने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उस प्लांट से, इसीलिए ग्रो कर रहा है, कंप्लीट कर जाता है अपना पूरा लाइफ साइकिल, पूरा सर्वाइवल हेज प्लांट के ऊपर कर जाता है कस्कुटा. But on other hand, when we are talking about this, the orchid growing as an epiphyte on a mango branch, तो जो एपीफाइट्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो कि पैरासाइट नहीं होते. बट क्यों नहीं होते? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट डिराइव नहीं करते. इनफैक्ट जो एयर से या बारिश होती है उससे, या जो कंपोस्ट प्रेजेंट होता है, डिकम्पोजिशन होती है ना कंपोस्ट मैटर से, तो जो कंपोस्ट मैटर प्रेजेंट होता है टी ब्रांचेस पे, उस सब से वो न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं. कौन? एपीफाइट. यहाँ पे आपके पास एक मेजर डिफरेंस भी आ गया. इफ समवन आस्क्स यू ए मेजर डिफरेंस बिटवीन एपीफाइट एंड अ पैरासाइट, देन पैरासाइट क्या करते हैं? पैरासाइट derives their nutrients for their survival from the host plant, but while the epiphytes does not derive nutrient from the host plant. In fact, unlike parasite, they take nutrient from air, falling rain and the compost that lies on tree branches. तो वो होस्ट के ऊपर ग्रो तो करेगा, लेकिन होस्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है अपने न्यूट्रिएंट के लिए. तो इस तरह का कौन प्लांट होता है? एक एग्जाम्पल है मैंगो ब्रांच पे ग्रो करने वाला ऑर्किड. और दूसरी जैसे मोसेस होती हैं, स्पेनिश मोस है, आपने नाम भी सुना होगा. इस तरह के जो प्लांट होते हैं ना, ये एपिफिटिक प्लांट होते हैं. तो ऑर्किड जो है वो एक एपिफिटिक प्लांट है जो मैंगो ब्रांच पे ग्रो करता है. एंड सिमिलरली इसी तरीके की एक एसोसिएशन होती है बेरेंकल्स की. बेरेंकल्स क्या होते हैं? एक तरह के आर्थ्रोपोड होते हैं जो वेल की बैक पे ग्रो करते हैं, लेकिन वो वेल को कोई भी अपेरेंट बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन उसको कोई हार्म भी नहीं दे रहे. जैसे ऑर्किड मैंगो पे ग्रो कर रहा है, ना उसको हार्म दे रहा ना बेनिफिट, बस अपने फायदे के लिए मैंगो पे ग्रो कर रहा है. सिमिलरली बेरेंकल भी वेल के बैक पे ग्रो करते हैं. बेरेंकल्स आर अ काइंड ऑफ आर्थ्रोपोड that grow on the back of a whale, but they do not provide benefit or harm to the whale. Okay. Now, the second example are the egrets always forage close to where the cattle are grazing. आपने सुना होगा इसके बारे में या आपने देखा होगा. एग्रेट्स होते हैं कैटल एग्रेट, बर्ड होते हैं ये एक तरीके के. जो कैटल एग्रेट हैं, दीज आर बेसिकली अ कॉस्मोपॉलिटन स्पीशीज ऑफ हीरोन,
बर्ड मतलब बर्ड जैसा होता है, यूजुअली टेम्परेट ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं। तो ये जो एग्रेट्स हैं, एग्जाम्पल होता है इनका एक बबलकस, बोलते हैं उसको बबलकस आइबिस। तो ये जो एग्रेट्स हैं कैटल पे, जहां पे भी कैटल ग्रेज कर रही होंगे वहां पे वो दे फोरेज क्लोजली टू द कैटल एरिया। जहां पे भी कैटल आपकी ग्रेजिंग कर रही होगी वहां पे दे फोरेज। तो इस तरह का जो इनका एसोसिएशन होता है ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। यूजुअली फूड या इस तरीके के प्रोविजन के लिए, मतलब इन द सर्च ऑफ फूड ये लोग जाते हैं, एग्रेट्स उस एरिया में जाते हैं जहां पे कैटल ग्रेज कर रही होती है। क्योंकि because when the cattle moves, stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch। कहने का मतलब क्या है कि जब ग्रेजिंग हो जाती है ना कैटल की, तो उसके बाद जैसे ही वो मूव करेंगे, स्टिरअप करेंगे, तो क्या होगा कि वो इंसेक्ट्स को वेजिटेशन से फ्लश आउट कर देंगे, जिसकी वजह से फिर एग्रेट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा उनको पकड़ना और उनको फाइंड आउट करना, क्योंकि दे विल डिराइव देयर फूड फ्रॉम दोज इंसेक्ट्स या दोज वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन पे जो इंसेक्ट्स ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए वो क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं कैटल के, ताकि उनके लिए इजी हो जाए कि कहाँ से उनको अपना फूड फाइंड आउट करना है और वो उसको तुरंत ही एब्जॉर्ब, मतलब यूज कर सके। Then we have third example of sea anemones that has stinging tentacles and the clownfish। आपने sea anemone की पिक्चर देखी होगी when you would have studied about animal kingdom। उनमें stinging tentacles होते हैं, बहुत स्पाइनी स्पाइनी से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लाउन फिश जो है दैट लीव्स अमंग देम, जो क्लाउन फिश है वो सी एनीमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल्स पे रहती है, क्योंकि फिश को प्रोटेक्शन मिल जाता है प्रेडेटर्स से, क्योंकि वो स्टिंगिंग टेंटिकल्स के ऑफ कोर्स जो चुभने वाली चीज है उसके आसपास नहीं आएंगे प्रेडेटर्स, वरना उनको हार्म होगा। तो इस सहारे फिश को बेनिफिट मिल जाता है अपने प्रेडेटर से, लेकिन जो एनीमोन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सी एनीमोन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ बेनिफिट दे रहा है क्लाउन फिश को अपने प्रेडेटर से बचाते हुए, लेकिन वो खुद ना उससे फायदा ले रहा है ना ही उसका कोई नुकसान हो रहा है। So these type of associations in which one species get benefits and other is neither harmed nor benefited is known as commensalism, where we studied about three major examples: agates and cattle, orchid and mango, baruncles on a whale, and sea anemone and clownfish. Now moving on to the next population interaction, we have mutualism। मैंने आपके साथ एक डील कर ली कि देख यार हम ये काम करेंगे, इससे तेरे को भी ये फायदा होगा, मुझको भी ये फायदा होगा। दैट इज समथिंग नॉन एज म्यूचुअलिज्म। हमने एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप कर लिया जहां पे हम दोनों इंटरेक्ट करेंगे और दोनों को फायदा होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दिस इज नॉन एज म्यूचुअलिज्म। दैट इज द इंटरेक्शन दैट कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस। लाइकेंस आपने देखे होंगे, SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, बहुत सालों से आप ये चीज पढ़ते आ रहे होंगे। लाइकेंस यूजुअली जब आप कभी हिली एरियाज पे जाएंगे तो वहां तो बहुत आराम से आपको मिलते हैं पेड़ के ऊपर। नॉर्मली भी पोल्यूशन इंडिकेटर हैं, जहां ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां लाइकेंस दिखते हैं पेड़ पे। तो ये थैलस शेप की फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं जो ग्रो करती हैं प्लांट उस पे, ट्रीज पे, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं एल्गे और फंजाई के बीच में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आप ये बात याद रखेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म नहीं होता, लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक टाइप होता है म्यूचुअलिज्म का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड व्हेन आई गेव माय नीट एग्जाम उस टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट created confusion among many number of people. They asked कि lichens is a type of,
म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो दोनों तरीके की एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एंड म्यूचुअलिज्म अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो दोनों ही करेक्ट है, बट उनमें से एक आ जाए तो म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक में से एक आ जाए तो भी दोनों करेक्ट हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस टाइप का रिलेशनशिप है और सिम्बायसिस एंड ऑल पूछने, तो हम सिम्बायसिस मार्क करेंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या सिम्बायसिस और म्यूचुअलिज्म एक ही होता है या उसका टाइप है, तो यू शुड नो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का दूसरा नाम नहीं है सिम्बायोसिस, बट वो उसका टाइप है। तो लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं, किसके बीच में? बिटवीन अ फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। कैसे, क्यों शो करते हैं? क्योंकि जो एल्गे है वो हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ है, तो वो फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से, जबकि जो फंजाई है वो सॉयल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो जो एल्गे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, PHYCOBIONT। फाइकोबायोन्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्गे के लिए फाइको वर्ड यूज होता है। स्टडी ऑफ एल्गे इज ऑल्सो नोन एज फाइकोलॉजी। सिमिलरली माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, उसके लिए यूज करते हैं वर्ड माइको, तो माइकोबायोन्ट। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि आप ये बताएं कि जो लाइकन्स हैं उनमें जाई का जो रिलेशनशिप होता है, जहां पे मैंने आपको लिख के दिया है साइनोबैक्टीरिया, तो ग्रीन एल्गे या जो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है ना, इधर ग्रीन एल्गे और ब्लू ग्रीन एल्गे मतलब साइनोबैक्टीरिया, उसके साथ रिलेशनशिप होता है फंजाई का लाइकन में। किसके साथ होगा? या तो साइनोबैक्टीरिया के साथ, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे, या फिर ग्रीन एल्गे के साथ एसोसिएशन होगा फंगस का टू फॉर्म लाइकन। एंड लाइकन में जो फंगस पार्टनर है उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं, और जो एल्गल पार्टनर है उसको फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। दिस इज द डिटेलिंग अबाउट लाइकन्स एंड इट इज अ टाइप ऑफ इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि जो एल्गी है वो फूड बनाएगी तो फंजाई को उससे फूड मिल जाएगा, और ऑन द अदर हैंड जो फंजाई है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी एंड इट विल प्रोवाइड हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन, या रहने की जगह देगी एल्गी को। So this is a mutualistic relationship between fungus and algae that is known as lichen. Another one is mycorrhizae, that are the associations between fungi and the roots of higher plants. जहां पे फंजाई प्लांट को हेल्प करती है, कौन से प्लांट को? हायर प्लांट्स को, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, वाइल जो प्लांट्स हैं वो इन टर्न एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर देते हैं फंजाई को। एक तरह के लाइकेंस की जैसी ही एसोसिएशन है, लेकिन इसके केस में फंजाई की एसोसिएशन रूट्स, कैरालॉइड रूट्स होती हैं जो हायर प्लांट की, उसके साथ एसोसिएशन होती है, क्योंकि प्लांट्स खाना दे देंगे फंजाई को और जो फंजाई है वो न्यूट्रिएंट्स दे देगी सॉइल से। देन द अनदर टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म इज पॉलिनेशन। ऑफ कोर्स प्लांट्स को बेनिफिट मिल रहा है, उनकी पॉलिनेशन हो रही है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होगा, और जो इंसेक्ट्स या बर्ड्स हैं जो उसको पॉलिनेट कर रहे हैं उनको उससे नेक्टर एंड अदर टाइप ऑफ दोज सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स सच एज फिग बाय इंसेक्ट्स और बर्ड्स सच एज वास्प्स आर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। नाउ लेट्स सी द पिक्चर्स। Figure 13.7 is showing mutual relationship between fig tree and wasp, where the fig flower is pollinated by wasp. आप समझते हैं, आप सबने फिग खाया होगा। डू आई होप सम ऑफ यू वुड बी नोइंग अबाउट फिग। अंजीर बोलते हैं, गोल गोल होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गोल 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 सर्कुलर से छोटे छोटे सर्कल्स, बीच में एक होल सा होता है, वैसे प्रेजेंट होते हैं फ्रूट, अंजीर बोलते हैं। तो वो जो फिग फ्लावर है उसको वास्प पॉलिनेट करते हैं
एंड वास्प क्या करते हैं, उस फिग के फ्रूट में अपने एग्स देते हैं। तो प्लांट को क्या बेनिफिट मिला, पॉलिनेशन हो गई जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो जाएगी, और वास्प को क्या बेनिफिट मिला, वो फिग के फ्रूट में एग ले करता है। दिस इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप। नाउ द सेकंड वन इज शोइंग अ बी दैट इज अ पॉलिनेटर ऑन ऑर्किड फ्लावर। ये ऑर्किड का फ्लावर है फिगर 13.8 में, जिसको बी ए पॉलिनेट कर रही है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। देन let's first study about last population interaction left with us, that is known as amensalism. amensalism ऐसी टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जहां पे जो दो स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं वो किसी और स्पीशीज की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। कहने का मतलब, see the table of amensalism. One is harmed, another one is neither harmed nor benefited. कहने का मतलब, जो दो स्पीशीज प्रेजेंट हैं उनमें से एक को नुकसान हो जाएगा, टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ओके, टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स किसी अदर स्पीशीज की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे by secreting certain chemicals. The organism which inhibits the growth of another organism is called amensal, and this whole phenomena is also termed as allelopathy. Plants में amensalism को allelopathy भी कहा जाता है। Other than that, antibiosis भी कहा जाता है और बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी कहा जाता है। रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स। अगर प्लांट्स की बात हो तो एलिलोपैथी होगा। नॉर्मली अगर टर्म पूछी जाए कि कौन कौन सी यूज होती हैं तो एमेंसलिज्म को एंटीबायोसिस या बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा उसको एमेंसल बोलेंगे, AMENSAL, एमेंसल बोलेंगे, एंड इस पूरे फिनोमिना को एमेंसलिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। पेनिसिलियम फंजाई है, सबको पता है, किस लिए यूज होती है, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए। क्यों, कैसे करती है वो बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट, बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। किस वजह से, बिकॉज पेनिसिलियम सिक्रेट्स पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की वजह से ग्रोथ इनहिबिट हुई, लेकिन उसको सिक्रीट किसी ने किया, पेनिसिलियम ने। तो पेनिसिलियम ने केमिकल सिक्रीट कर दिया पेनिसिलिन, जिसकी वजह से नंबर ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट होती है। सेकेंड एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोमाइसिस। Streptomyces produce a wide range of chemicals to kill bacteria causing various human disease. आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस का नाम, स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से एक दवाई भी आती है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है वो भी बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है टू किल बैक्टीरिया, जो कि बहुत सारी ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं। देन यू हैव रूट्स ऑफ ब्लैक वॉलनट। वॉलनट का नाम सुना है आपने, अखरोट। ब्लैक वॉलनट की जो रूट्स होती हैं, ब्लैक वॉलनट का साइंटिफिक नेम इज जगलस रीजिया। जो ब्लैक वॉलनट की रूट्स होती हैं, दे सिक्रेट ए केमिकल जगलोन। जगलोन नाम का एक केमिकल सिक्रेट होता है दैट इज टॉक्सिक टू अदर प्लांट्स लाइक एप्पल, अल्फाल्फा एक्सेट्रा। जगलस रीजिया की रूट से एक केमिकल सिक्रेट होता है जगलोन, जो कि दूसरे प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होता है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अल्फाल्फा एक्सेट्रा। सो बाय दिस थिंग ब्लैक वॉलनट को कोई बेनिफिट, कोई हार्म नहीं मिल रहा, लेकिन उसने एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस क्रिएट कर दिया जो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एमेंसलिज्म। देन हमने क्योंकि बात की अलीलोपैथी की, तो अलीलोपैथी क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, एक ऐसी बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जहां पे एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस वन और मोर बायोकेमिकल। एक ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा बायोकेमिकल प्रोड्यूस करता है दैट इन्फ्लुएंस द जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म की जर्मिनेशन,
ग्रोथ, उसका सर्वाइवल और उसकी रिप्रोडक्शन इन्फ्लुएंस होती है। इन केमिकल्स को, इन बायोकेमिकल्स को बोलते हैं अलीलोकेमिकल। और होते क्या है अलीलोकेमिकल? दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी मेटाबोलाइट जब प्लांट्स में बनते हैं, उन्हीं के साइकिल, उन्हीं के इंटरकनेक्टिंग साइकिल्स की वजह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। तो एलिलोकेमिकल एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो प्लांट्स या कुछ और ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इट कैन हैव बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। इसका पॉजिटिव बेनिफिट भी हो सकता है, इट कैन बी बेनिफिशियल एलिलोपैथी एंड इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव एलिलोपैथी. So this is the type of negative and positive allelopathy, and this is by what we studied allelopathy and amencialism. And now the last term for today is sexual deceit. What is known as sexual deceit? But before that, अगर आपने नाम सुना है फिनोलिक्स का, हाइड्रोजेमिक एसिड्स का, तो ये इनके अंदर एलिलोपैथिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फिनोलिक्स तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एलिलोकेमिकल का। फिनोल्स जो होते हैं ना वो, तो वहां से क्या हो जाती है एलिलोपैथी। देन इफ यू रिमेम्बर, देन अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एलिलोपैथी की, तो जो हेलियंथस ट्यूबरोसस होता है, एक स्टेपल फूड क्रॉप होती है ये यूरोप में, जो कि अब वीड बन गई है, उसको यूज किया जाता है टू कंट्रोल अदर वीड्स, स्पेशली मोनोकोट वीड्स। तो एक तरीके से वो एलिलोकेमिकल है जो कि वीड से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो बेनिफिट कैसे दे रहा है? दूसरी वीड्स को कंट्रोल करके। एक वीड से प्रोड्यूस होने वाला केमिकल दूसरी वीड्स को कंट्रोल करने में काम आता है। दिस इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव एलिलोपैथी, एंड सिमिलरली देयर कैन बी नेगेटिव एलिलोपैथी। नाउ वी हैव सेक्सुअल डिसीट, जहां पे one petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female of the bee in size, color and markings. The male bee is attracted to what it perceives as a female, pseudocopulates with the lover, and during that process is dusted with pollen. समझिए आप क्या हो रहा है? Being very clever. फ्लावर की कोई एक पेटल यहाँ पे आपको दिख रही है, ऑर्किड का फ्लावर है, इसकी पेटल को देखो, ये जो पिंक पिंक कलर की छोटे वाली पेटल्स दिख रही हैं, ये बिल्कुल बी जैसी दिख रही हैं। हमें खुद ही बी जैसी दिख रही हैं, तो बी को तो और भी अपने जैसी लगती हैं। ये पेटल है फ्लावर की, जिसकी रिजेम्बलेंस हो जाती है बी के फीमेल से। फीमेल बी जो होती है उस जैसी दिखने लगती है ये पेटल, उनके साइज में, कलर में और उनकी मार्किंग्स में। उससे क्या होता है? मेल बी इज अट्रैक्टेड टू इट। उस फ्लावर की पेटल से मेल बी अट्रैक्ट हो जाता है ये सोच के कि ये फीमेल बी है, एंड स्यूडो कॉपुलेशन कर देता है उसके साथ। कॉपुलेशन करने की सोचता है टू रिप्रोड्यूस, और स्यूडो कॉपुलेशन हो जाती है। स्यूडो कॉपुलेशन एक न्यू टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। क्या? क्यों? जब उस मेल बी ने ये सोचा कि फीमेल बी के साथ कॉपुलेशन करेगा टू रिप्रोड्यूस, लेकिन वो एक्चुअल में फीमेल बी नहीं थी, उस जैसा कुछ और था, जो कि ऑर्किड के केस में पेटल था एक फ्लावर का। तो उसने स्यूडो कॉपुलेशन कर ली, और उससे क्या होता है? उस ऑर्किड के प्लांट को बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द स्यूडो कॉपुलेशन द मेल बी makes the flower dusted with the pollen. During this process, what happens is the male bee is attracted to what it perceives as a female and pseudo copulates with the lover, and during that process is dusted with pollen from the flower. फ्लावर से पोलन की डस्टिंग हो जाती है, किसी और फ्लावर से लेके आया होगा ना ऑर्किड के ही, तो वहां से डस्टिंग हो जाती है उस पोलन की, एंड द फ्लावर गेट्स बेनिफिट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट क्यों? क्योंकि एक जो है वो दूसरे जैसा दिख रहा है, तो दिस इज नोन एज सेक्सुअल डिसीट। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस जहाँ पे एक दूसरे जैसा दिख रहा है और इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज नोन एज सेक्सुअल डिसीट। डिसीट क्यों बोल रहे हैं इसको? डिसीट का मतलब होता है कि किसी को उस जैसा दिखना जो कि फाल्स है, मतलब ऐसे एक्सेप्ट करना कि वो सही है लेकिन वो एक्चुअल में फॉल्स है।
और यहाँ पे उसकी सेक्स को उसने गलत इंटरप्रेट कर लिया, जो कि ट्रूथ उसको लगी लेकिन वो एक्चुअल में फाल्स या इनवैलिड थी. दिस इज नोन एज डिसीट, और दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल डिसीट, एंड इसी में होता है स्यूडो कॉपुलेशन. By this, we are done with all our topics. We studied an commensalism, that is negative zero interaction, mutualism, where we have plus plus interaction, commensalism, where that is plus zero interaction, parasitic mode, where we have plus minus interaction, competition, where we have negative interactions, we have predation plus minus interaction, and then we have, yeah, by this we are done with every interaction. Mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism, and symbolism. You must learn, you must understand the sign languages for these type of interactions, what they are, and the very important is all the examples that I have highlighted here. By this, we are done with our topic. You must watch the video, make your notes, and get through all the basics of this. By this thing, we are almost done with our chapter of organisms and population, where we talked about interactions of organisms and population. Keep liking, sharing, and subscribing the channel, watching the videos from Ishita's Botanic, as well as comment down your doubts. Whatever problems you face, you may ask out on Telegram group, as well as you may comment down in the YouTube chat section. We may also practice the questions from the chapter, and then we will move ahead to the next chapter. Thank you. Have a nice day.